السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس توحید کبریاء و رقم سر قلم ہے یہاں قلم کے قلم فرش سے تاب عالم بالا الہ سبحان ربی اللہ روح قالب میں ڈالنے والا دام غم سے نکالنے والا جنگلوں میں وہ بے کسوں کا رفیع مشکلوں میں وہ بے بسوں کا شفیع غمزدوں کا ولی غریب کا یار سب کا بگڑی غریب کے منہار حلق کرنے لگی جو بے ادبی بھیجا اس نے محمد عربی نور حق سے ہوا جہاں معمور ظلمت کفر ہو گئی کافور رشتہ عشق حق سے جوڑ دیا کلمہ پڑھ کر بتوں کو توڑ دیا ڈھاکہ رحمت کے شامیانے میں دین پھیلا دیا زمانے میں آ گئے راہ پر جو تھے گمراہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کی ظلم و صفات و انسان اللہ پاک کی صفات و انسان ظلم و جہل کی زبان کو یا چھوٹا منہ بڑی بات ہے اگر تمام جہان کے دریاؤں کی روشنائی بن جائے اور دنیا بھر کے درختوں کے قلم تراشے جائیں اللہ پاک کے اندر سے نہ لکھنا چاہے تو یہ سب سامان روشنائی وغیرہ ختم ہوتے جائیں بلکہ اگر اتنے ہی دریا اس روشنائی کی مدد کے اور لائے جائیں تو بھی ختم ہوتے جائیں لیکن اللہ پاک کی حمد و ثنا ہرگز نہیں لکھی جا سکتی اور میرے اس دعوے کے ثبوت میں یہ شہادت کافی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دو لو کان غیر مدادن کلمات رب لنا فی مدادن اتنی تو اعلیٰ شان اس پہ یہ قرب اور احسان کی بنا ہم اقرب الیہ من حبل الورید ہم تمہاری رگے گلو سے بھی نزدیک تر ہیں جل جلالہ و اما نوالہ کیا کہاں تلاش کریں اور کہاں ڈھونڈنے جائیں تجھے جل جلالہ تو ملا قریب رگے گلو تیری شان جل جلالہ تیری یاد میں ہے کلی کلی ہے چمن چمن میں ہو اللی تو بسا ہے پھول میں ہو بہو تیری شان جل جلالہ یا اللہ ہی اللہ ہے یہاں اللہ ہی اللہ ہے یہاں اللہ ہی اللہ ہے وہاں اللہ ہی اللہ بے شک مشینی نام ہے اللہ کا جب اس کو لیتے ہیں چپک جاتی ہے تالو سے زبان اللہ ہی اللہ ہے کرو اللہ ہی اللہ دم بدم اللہ خوش ہوگا وہاں رحمت برستی ہے جہاں اللہ ہی اللہ ہے الحمدللہ کہ اس نے اپنے بزرگ دیدہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے معمور فرمایا کہ پیغمبر اور اپنے پیارے پیغمبروں کو ہماری رہنمائی کے لیے معمور فرمایا ان کے ذات پر تو نے ہمیں سیدھی راہ سجائی جن کی رسالت کے جلوے کے فانوس چمکائی جن کی رسالت کے جلووں کے لیے ہمارے دلوں کے فانوس میں معرفت چمکائی جس کی روشنی میں اپنے آپ کو پانی اور اس کو باقی جانا جس کے اجالے میں ہم نے اپنے آپ کو بندہ اس کو معبود پہچانا جن کی دعاؤں کے سلے میں ایک ایک نعمت عظمہ ہمارے ہاتھ آئی جن کی خوشخبری کے نتیجے میں ایک ایک دولت بے زوال ہم نے پائی وہ نعمت عظمہ کی اس کے صدقے میں نور ایمان سے نہایا اور دولت بے زوال اس کے بدولت دین اسلام سے مالا مال ہوئے وہ کون جو باعث سکون بے یاروں کا یار بے مددگاروں کا مددگار بے وسیلوں کا وسیلہ بے بھروسوں کا بھروسہ بے بسوں کا بس ٹوٹے دلوں کا سہارا اللہ تعالیٰ کا پیار جس سے ہم گنہگاروں کو بنایا خطاؤں پر زار زار رونے والا دونوں جہاں کا آفتاب مدینے کا تاجدار جس کو فرشتے جھولا جھلائے جبرائیل امین جس کے در پر
सब उरो मलक जिन्नो बच्चा उसी कदम बढ़ते हैं और अक्सर चैन परिंद सजा हजा उन्हीं के सजदा करते हैं। कुल कायनात में उन्हीं का डंका बजा और शफात का ताज उन्हीं के सर पर सजा और सजा रहेगा। बुराई से भलाई और भलाई से बुराई को यही चाहते हैं। खराब आईनों पे जिला देने वाले, दिलों की कुदूरत मिटा देने वाले, इधर भी कोई रेजा पाने नेमत, खुदाई की दौलत लुटा देने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन नबी उम्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद ताज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताज वल मिराज वल बुराक़ वल अलम दाफिल बलाए वल वबाए वल क़हत वल मरज वल अलम इस्मु मक्तूब मरफू मशफू मनफूश फिल्लाह वल क़लम सैद अरब अजम वल अजम इस्मु मुक़द्दस मुअत्तर मुतहहर मुनव्वर फिल बैत वल हरम शम्स दुआ वजह दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा बिस्बाई ज़ुलम जमील श्यामी शफील उमामी साहिबुल जूदी वल करमी वल्लाहु आसिम व जिब्रील क़ादम वल बुराक़ मरकबु वल मिराज सफ़र व सिदरतुल मुंतहा मक़ाम वक़ाब क़ौसैन मतलूब वल मतलूब मक़सूद वल मक़सूद मौजूद सैयदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबैन रहमतुल लिल आलमीन लिल आशिकीन मुरादुल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरिफ़ीन साजिद सालिकीन मिन मुक़र्रबीन मुहब्बिल फ़ुक़ारा वल गुरबाई वल मसाकीन सैयदुल सकलैन अबील हरमैन इमामुल क़िबलतैन सिबलतैन फ़िज़ारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन वल सकलैन अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमाली सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम। अब फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ सुन लीजिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। यानी तहकीक अल्लाह ताला जल्ल शानो खुद इरशाद पर शानो फरिश्ते उसके दूध शरीफ भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ऐ ईमान वाले तुम भी दूध भेजो उन पर और सलाम। अब इससे ज़्यादा और कौन सी हिकमत होगी और फजीलत होगी कि ये खुद खुदा का फ़ाल है। हुक्म नातक है, एक तो तकलीद खुदा, दूसरा तामील है हुक्म खुदा। जो शख्स एक बार दुरूद शरीफ पढ़े उस पर 10 और इस आयत शरीफ में ज़ाहिर कि अल्लाह जल्ल शानो के प्यारे महबूब मोमिनों का आगा बनाते कि तुम भी तो भेजो, साथ मोह को हुक्म करता है कि तुम भी तो भेजो। इससे किस कदर ताज़ीम और तकरीम सलातो तस्लीम तकरीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का पता मिलता है। ना किसी नबी के लिए ऐसा एजाज़ आया और न किसी फरिश्ते के लिए हुक्म आए। चाहिए कोई बात भूल जाए या कोई चीज़ खो जाए तो दुरूद शरीफ पढ़े, बात याद आ जाएगी और गुमशुदा शय मिल जाएगी। घर से निकलते वक्त, सवारी पर सवार होने के वक्त, बाजार जाने और वापस आने के वक्त जो किसी भी चीज़ की ज़रूरत पेश आए तो दुरूद शरीफ पढ़े। हर रंजो गम मुसीबत में, तकलीफ़ मुसीबत में, हाथ से ले जाने, पानी में डूब जाने के खौफ में, भूख प्यास में, कोई चीज़ अल्लाह से मांगने में, खाना खाने, पानी पीने, मुसाफा करने में, किसी नेक महफिल में शरीक होने के वक्त, कलाम अल्लाह के शुरू और ख़त्म और हदीस पढ़ने और पढ़ाने, जो इल्म शरअन जायज़ हो और उसको पढ़ने और पढ़ाने में, और जो चीज़ देखनी भली मालूम हो और खुशबू अमाल के उलाती में शरीफ पढ़ना हसनात बख्शिश और निजात का जरिया, इससे अच्छा कोई नहीं है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, कुर्बे खुदा हो हासिल जन्नत में हो दाखिल, जिसने पढ़ा लिखा है सल्ले अला मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। मोहम्मद बिन साद मुस्तरब का मामूल था कि सोते हुए 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। एक रात ख्वाब में देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया, ऐ साद तुम अपना मुंह सामने ला कि मैं उस पर बोसा दूंगा। हजरत साद को शर्म आई कि ऐसे पाक मुंह के सामने ऐसा गंदा मुंह किस तरह लाऊं, लेकिन चूंकि हुक्म अदब का खौफ रखते हैं नाचार अपना रुखसार सामने किया। हुजूर पाक ने कमाल मोहब्बत से बोसे के शख्स से मुशर्रफ फरमाया। जिस वक्त ख्वाब से बेदार हुए तो सारा मकान खुशबू से मोतबर था
और 8 रोज तक रुखसार मकान से खुशबू से महकता रहा। जो ख्याल आया तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए, ये महक लहक की लिबास में कि मकान सारा बसा गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद नबी उम्मी व आलिहि व सल्लम। फ़ज़ाइल मिलाद शरीफ। इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ुलु रहमतुहु, यानी ज़िक्र सालिहीन के वक्त अल्लाह पाक की रहमत का नुज़ूल होता है। रहमत का नुज़ूल चाह जाए कि तमाम सालिहीन और मुरसलीन के पेशवा हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो, उस पर ये भी खूबी की दूर शरीफ की सदाएं बुलंद हो, वहाँ के आदमी पर क्यों ना रहमत का नुज़ूल हो, सामाइन को क्यों ना नफ्स मदा वसूल हो। और मनकूल है कि जिस मकान में यह महफिल मिलाद होती है उस पर साल भर तक रहमत का महीना बरसता है और महीना होता है, और उस मकान के रहने वाले इज़्ज़ो अमान में रहते हैं और बेइंतहा खैर बरकत शामिल हाल रहती है। किसी ने एक बुजुर्ग ने ख्वाब में हुजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, दरियात किया कि ये मौलवी शरीफ की महफिल कैसी है। तो हुजूर पाक ने फरमाया, जो हमसे मोहब्बत करता है हम भी उससे मोहब्बत करते। कुर्बान इन प्यारे अल्फाज के साबित हुआ कि ये मोहब्बत के सामान है, और वाकई बगैर किसी मोहब्बत के कौन अपना जान माल फिदा करता है। मुस्तफा सल्ले अला की आज महफिल है, हबीबे किबरिया सल्ले अला की आज महफिल है, पढ़ो सल्ले अला सल्ले। रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला 12 भाई थे और सबसे ज़्यादा क़ुव्वत व हुस्न जमाल में मशहूर नज़दीक दूर थे। यह हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुबारक के बारे में ये वाक़या है, ये जो मैं अर्ज़ कर रही हूँ। तो वो 12 भाई थे, हज़रत अब्दुल्ला 12 भाई थे, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला उन सबसे मुमताज़ यकताए रोज़गार थे। तमाम मिला इम्तियाज़ में उनके हुस्न व जमाल का चर्चा और सूरत व सीरत की धूम थी। तमाम अहले अरब उनकी मोहब्बत का दम भरते थे और वालिदैन भी सब बेटों से ज़्यादा हज़रत अब्दुल्ला को चाहते। इस वक्त हज़रत अब्दुल्ला मक्का के बाज़ारों से गुजरते थे। तमाम औरतें शहर की जो हसीना जमाई होती थी वो सब हज़रत अब्दुल्ला पर जान माल से फिदा होती थी, हर एक उनसे निकाह की आरज़ू रखती थी। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये बात मालूम हुई तो तने तना उनके निकाह मसरूफ़ हुए और ज़्यादा जुस्तजू थी कि जो लड़की कुरैश के सूरत व सीरत में खूबतर हो वो उनके निकाह में लाई जाए। चुनांचे वहब ज़हरी की लड़की बीबी आमना खातून अहले तहकीक लिखते हैं, अल्लाह पाक ने उस वक्त के इंतज़ामात एहतमाम फरमाया कि मक्का में जितने मर्द थे हज़रत अब्दुल्ला और जितनी लड़कियाँ थी उनमें से बीबी आमना को इंतखाब किया मतलब चुना, और यही दोनों मेरे महबूब के माँ बाप बने। रिवायत की अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला का निकाह का पैगाम बाज़ अहबाब के जरिए वहब ज़हरी को भेजा। वहब ज़हरी बहुत खुश हुए, बदले मंजूर किया, महर की शर्तें पसंद हुई, पर का दिल फरसन हुआ। अब्दुल मुत्तलिब ने वक्त मुकर्रर पर दोस्त वगैरह को जमा किया और बीबी आमना को निकाह किया और बीबी आमना खातून को ब्याह कर घर लाए। पहले एक चांद रोशन था, 2 चांद रोशन हो गए। रिवायत की जिस दिन नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमना को इनायत हुआ 12वीं तारीख माह जमादिल आखिर शब जुमा थी, जो इस शब को जो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्फ बुजुर्गी बख्शा है वो बेइंतहा अल्लाह पाक ने ताता की खैर बरकत अहले आलम पर नाजिल फरमाई। इस शब कदर से इस शब को बेहतर समझो, अफजल जानो तो ज़ेबा। कौन सी शब को? जुमेरात की शब को, क्योंकि इस दिन नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के शिबिर में आए थे और आलम इस शब को बेहतर समझो, अफजल जानो तो ज़ेबा। ये कौन सी शब? जुमा की शब। इस रात को जन्नत के लोगों को हुक्म हुआ कि तमाम जन्नतों के दरवाजे खोल दें कि हमारा हबीब माँ के शिकम में आया। आलम उनको जबूत में हुक्म सुना दिया गया, तमाम मुक़द्दस मुकामों को मुअत्तब और अतराफ और समावात में खुशबू बसाओ, चारों तरफ नूर की शम्में रोशन हो और सारा जहां खुशबू से महक जाए। अर्श कुर्सी ये खुशखबरी सुनकर मालिक खुशी के झूमने लगे, मुबारकबाद होने लगी। मुबारक हो कि पैदा शाह वाला होने वाला है कि जिसके नूर से घर घर उजाला होने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन नबी उम्मी व आलिहि व सल्लम। लिखा है कि हज़रत आमना के हामला होने से पहले अहले कुरैश बेसबब खुशकसाली के कहत वो मुसीबत में मुब्तला थे। तमाम दस्त सूख गए थे, सब ज़मीन पर ना दिखाई देता था, सब जानवर दुबले हो गए थे। परेशानी थी। जिस वक्त हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालदा की शिकम में आए तो जलवा अफरोज हुए तो अल्लाह ताला ने खूब पानी बरसाया और अहले अरब सरो शादाब हो गए। यहाँ तो फसल जो है उम्दा हुई, जानवर मोटे हो गए, मवेशी बकसरत दूध देने लगे। इस साल चैन और आराम अहले अरब को
तो इस बरस का नाम इतना हासिल हुआ कि इस साल का नाम सुन्नतुल फरह वल बतहा यानी फरहत और खुशी का साल कह दिया गया। आमद मुस्तफा से है फूला फला चमन चमन, आई बहार हर तरफ खिलने लगा चमन चमन, झंडा हर घर घर फहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह पुकारो या हबीब अल्लाह। रिवायत है कि हज़रत बीवी आमना फरमाती हैं कि अमल के शुरू से 6 महीने तक मुझे कोई अलामत हम ज़ाहिर नहीं हुई जो अमूमन औरतों को ज़ाहिर होती है, लेकिन बल्कि जिस कदर विलादत शरीफ का ज़माना आता था आसार फरहत सुरूर और बढ़ते जाते थे, तबीयत में खुशमुख्तगी होती थी और सबसे ज़्यादा मेरी इज्जत और तौक़ीर ये हुई कि हर महीने में एक एक पैगम्बर आता था और मुझे खुशखबरी सुनाता था कि पहले महीने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाया है हमने तुम्हारे शुक्र मुबारक में वो साहिब इज़्ज़त और ताज़ीम है जो सारे आलम के बुज़ुर्ग हैं। दूसरे महीने में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तीसरे महीने में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, चौथे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम, पाँचवें में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, छठे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, आठवें में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और तरह तरह के फ़ज़ाइल के साथ खुशखबरी सुनाई। मौलाना बरजंजी अपने रिसाले मौलूद शरीफ में तहरीर फरमाते हैं, वक़द तहतनल क़याम इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ुलु व रहमतु, यानी ज़िक्र सालिहीन के वक्त और तहकीक अच्छा जाना उठ खड़े होने का वक्त है। जिक्र पैदाइश हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामों ने जो रिवायत करने वाले फतूबा लिमन कान अला ताज़ीम, बस भलाई हो जो जिसे ताज़ीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद की तहकीक अच्छा जाना उठ खड़े होने के वक्त की जिक्र पैदाइश हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामों ने जो रिवायत करने वाले फतूबा लिमन कान अला ताज़ीम, बस भलाई हो जिसके लिए जो जिसे ताज़ीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद। से 9 महीने पूरे हुए और वक्त आपकी पैदाइश का करीब आया तो आपकी वालदा के पास बहुत सी औरतों के साथ हज़रत बीबी आसिया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आलम खुद से हाजिर हुई और सब यही बहुत सी जन्नत की हूरें साथ थी और सब यही कहती थी कि अल्लाह पाक ने हमें आपकी खिदमत के लिए भेजा है। आपकी वालदा फरमाती हैं कि उस वक्त मुझे कुछ प्यास मालूम हुई तो उस वक्त मालूम हुई उसी वक्त एक नूरानी फरिश्ता मेरे पास आया, उसके हाथ में एक शरबत का गिलास भरा हुआ था, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा, उसमें बर्फ से ज़्यादा ठंडा, उसमें गुलाब से ज़्यादा खुशबू आ रही थी। हाथ में दिया और कहा पी लो ए आमना, इसे पी लो, जन्नत से तुम्हारे लिए शरबत आया। इस्लाम से खूब सैर होकर पिया, फिर कहा और पियो तो और पिया। उस वक्त तशनगी रफ़ा और सुकून हासिल हुआ। फिर उस फरिश्ते ने यह इल्तिजा की, इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन, इज़हर या खातिमुन नबिय्यीन, इज़हर या खातिमुन नबिय्यीन, इज़हर या सय्यदुल आलमीन। पढ़ो दुरूद पढ़ो आशिकों दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल न रहो। दूर तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि। निदा थी के सरकार तशरीफ लाओ, शहंशाह अबरार तशरीफ लाओ, रसूलों के सरदार तशरीफ लाओ, दो आलम के मुख्तार तशरीफ लाओ, ज़मी को भी इज्जत हो अर्शे उला की, दिखा जाओ बंदों को कुदरत खुदा की। खड़े थे मलक वो तकलीद अब हो कि खुशी से रूह रसूले अरब हो। निकल जाए महफिल, खड़े थे मलक वो ही तकलीद अब हो कि खुशी जैसे रूह रसूले अरब हो। निकल जाए महफिल से जो बेअदब हो, उठो ताकि ताज़ीम महबूब रब हो। फजा मोहम्मद बशीरन नसीरा, फसल्लू अलैहि कसीरन कसीरा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका,
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ فخر آدم فخر نو حوا فخر نوح فخر یحییٰ فخر ابراہیم و موسیٰ فخر اسماعیل و عیسیٰ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام میرے چرخے نبوت پہ روشن دو بولے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام شہریار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام شب اسراء کی دولہ پیدا یم درود نوش بز میں جنت پہ لاکھوں سلام رب اعلیٰ کی نعمت پہ بے حد درود حق تعالیٰ کی ثروت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم اس کا پہ پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام شہر آنے حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام جس سبحانی گاڑی چمکاتا ہے باقا چاند اس کا پہ پا کیوں سے افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات مومنوں وقت رحمت رب ہے
اب وہ مانگو جو دل وقت رحمت رب ہے، اب وہ مانگو جو دل کا مطلب ہے، سب کو رب بے غفور دیتا ہے وہ داتا ضرور دیتا ہے، تم کرو عرض اے کرم والے، ہاتھ پھیلا رہے ہیں غم والے، اے خدا صدقہ آل اطہر کا، خاتمہ ہو بخیر اکبر کا، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا